Good morning, all my dear students. Standard 12th, Chapter 6, Application of Derivative, Solution Exercise 6.2 चल रहा था। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। Important question number 8, 7th and 9th we also solve question number 8. Very easy question है, find variables bitwise. All students must be present both. X minus 2 whole square. All increasing function. Find variables. First, this function is find out intervals. तभी तो हमें पता चलेगा कि ये किस इंटरवल में प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच में कितने ब्लॉक हैं इसके, कितने इंटरवल्स हैं, और वो इंटरवल्स वे वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे कि दिस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। ओके, फर्स्ट रूल्स फॉर इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग डेरिवेटिव dy by dx. This question may be you write down x square x minus 2 whole square, whole square x square x minus 2 whole square. Use for f1x into f2x. Division rule x square dy by dx x minus 2 whole square x minus 2 whole square d by dx x square. Okay, x square 2 x minus 2 x minus 2 whole square 2x. Now 2x x minus 2 also be common. Here x plus x minus 2 2x, so 2 also common. 4x x minus 2 x minus 1. This is a f dash x. अब इसके बाद सेकेंड रूल हमारा क्या था, f dash x is equal to 0. फाइंड द इंटरवल्स, यहाँ 0 करेंगे तो x is equal to 0, x minus 1 is equal to 0 1, x minus 2 is equal to 0 2. Means 0 1 and 2. Here make up 4 intervals. फर्स्ट इंटरवल आप ऐसे टेबल बना लो, टेबल भी बना सकते हैं। ये देखो, फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0 एफ डैश एक्स 4x x माइनस 2 x माइनस 1। सो करो कि इसके बीच में आप वन वैल्यू ले लो, जो भी एनीवे बिगेस्ट स्मॉलेस्ट वो बिगेस्ट बन जाओ। माइनस 1 इसके बीच में है, f डैश माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस लेस देन 0। इसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग पूछ रहा है। हाँ, तो इसमें डिक्रीजिंग हुआ। सेकेंड इंटरवल 0 to 1 0.5 to 1 0 to 1 f dash 0.5 means 1/2 कंसीडर करो। 4 into 1/2 1/2 minus 2 1/2 minus 1, this is value plus, this is minus, minus 3/2 minus 1/2, 2 cancel, so plus 3/2 that is the increase. Second step, second interval 1 to 2 f dash 3/2, 1 to 2 means 1.5 divided by 10, so 3/2। तो 3/2 एक वैल्यू है, आप एक वैल्यू
less than decreasing. Last interval 2 to infinite. 2 to infinite means f dash 3 any value 3 यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो 4 3 का 12, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 मीन्स 24। वैल्यू से मतलब नहीं है, बस पास्ट के नेगेटिव से मतलब है इंक्रीज। तो आप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 1 डिक्रीजिंग, -1 1 इंक्रीजिंग, 1 to 2 डिक्रीजिंग, 2 to infinite इंक्रीजिंग लिखो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली इम्पोर्टेंट फॉर function passed to the negative f dash x. If f dash x is positive for x1, that is decreasing, f dash x x2 for negative, that is decreasing. Question number 10. Log function y equal to log x strictly increasing, x belongs to 0 to infinite बेटा। कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको जो है बिल्कुल ग्राफ से मिल जाएंगे। लॉग ऑफ ग्राफ फंक्शन, लॉग ऑफ ग्राफ फंक्शन। अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आता है, नहीं आता है तो आप क्या करो, अपने रूल से चलो। f dash x 1 by x where x belongs to 0 to infinite, f dash x greater than 0। आपको अगर चेक करना है नंबर लाइन पे कुछ भी ले लो 0 to infinite के बीच में 1 2 3 4 एनी तो f dash 1 1 f dash 2 1 by 2 greater than 0 हर सब में भी इंक्रीज ग्राफ में बनाना है ग्रेटर देन 0 so that this function is strictly increasing on 0 to infinite, 0 to minus infinite this function is decreasing। क्वेश्चन नंबर 11 बस आपको डेरिवेट करके देखना है कि क्या इस फंक्शन को पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव। neither strictly increasing nor strictly decreasing, x belongs to -1 to 1 means number line -1 to 1। इसके बीच में ना तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना ही फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। It means f dash x 2x minus 1, f dash x equal to 0, so 2x minus 1 equal to x equal to 1 by 2। There are two intervals. First interval -1 to 1 by 2 मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 है तो फंक्शन में f dash 0 तो 2 minus 1 means 0 means x belongs to -1 by 2 to 1 by 2 strictly decreasing। ये हो गया सेकेंड इंटरवल। आपको बस इंटरवल फाइंड आउट करना है 1 by 2 to 1 means 1 by 2 मिडल टर्म कुछ भी निकालो हाफ ऑफ 1 plus 1 by 2 डिस्टल नंबर आप निकालना जानते हैं तो 3 by 4 दिस इज 3 by 4। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे 3 by 4 बिटवीन 2 into 3 by 4 minus 1 that is 1.5 minus 1 0.5 greater than 0 means this interval x belongs to
1/2 to 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब है कि 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू इतनी अगर निगेटिव आती है तो इतनी वैल्यू पास हो जाएगी। अगर मैं दोनों को काउंट करूंगा रिजल्ट इसका मींस f dash s is strictly decreasing on -1 to 1/2 and strictly increasing on 1/2 to 1, then function x belongs to -1 to 1 is neither strictly increasing and strictly decreasing on interval -1 to 1। सीधी बात है कि अगर ये 10 पॉइंट्स डिक्रीज किया है 10 पॉइंट्स इंक्रीज किया है तो -10 + 10 = 0। फिर फंक्शन हमारा उसी पोजीशन में आएगा जिस पोजीशन में आएगा। ओके, so that this interval is not neither increasing or not decreasing। Question number 12, which following function are strictly decreasing on? मतलब फंक्शन जो है which following intervals strictly decreasing, किसके इंटरवल 0 to π। ये फंक्शन है f(x) = cos x। आपको सिर्फ इसके बीच में जाना है 0 to π/2 के बीच में चेक करना है कि which फंक्शन strictly decreasing और strictly increasing। सिंपल वे है f dash x = -sin x। you know that sin x is greater than 0 if x belongs to 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या है पॉजिटिव है। देन f dash x ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा 0 से π/2, ये निगेटिव इसको निगेटिव कर देगा लेस देन 0। दिस क्वाड्रेंट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड ऑप्शन b y = इसको लिखो। हाँ, सेकंड फर्स्ट क्लियर हो गया कि sin x में भी गिवन पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 बट निगेटिव इज चेंज ऑफ साइन लेस देन 0। निगेटिव के कारण जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 0 हो जाएगी। देन इट इज डिक्रीजिंग। अब आप देखिए ऑप्शन बी y = cos 2x मींस f dash x y = f(x) -2 sin 2x where x किसके बिलोंग है 0 to π/2। इट मींस 2x greater than 0 less than π/2। x means x is greater than 0 less than π/4। मैंने पहले बोला था कि एंगल जो है वो डिपेंड नहीं करता रेंज पर। जो वैल्यू x की है वो 0 से π/2 2x भी बिलोंग करेगा 0 से π/2। ये 2 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब इंटरवल हमारा आ गया क्या 0 से π/2 now π/4 0 to π/4 दो कंडीशन आई। फर्स्ट कंडीशन 0 to π/4 sin 2x greater than 0। 0 से π/4 की आप कोई भी वैल्यू π/6 डालोगे π/6 मींस π/3 हो जाएगा। π/3 वैल्यू पॉजिटिव देन बट
इसमें ये -2 क्या करेगा, इसको निगेटिव कर देगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इसमें भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसके कारण, -2 के कारण। सेकेंड इंटरवल π/4 to π, इसमें π/2, दिस ऑक्टेन में भी द साइन 2 इयर्स ग्रेटर है। आप π/6 डालोगे तो π/3 हो जाएगा, और π/3 डालेंगे तो वैल्यू जो है पास हो जाएगी। इट मींस बट f'(x) लेस देन 0, f'(x) क्या है, नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस क्वाड्रेंट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड ऑप्शन क्या आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑप्शन ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, सेकंड ऑप्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π/2। थर्ड, y equal to cos 3x, y dash equal to -3 sin 3x। ओके, इट मींस यहाँ पे इंटरवल देखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/3। इन प्लेस ऑफ 3x is greater than 0 लेस देन इक्वल टू या एनीवे लेस देन 3π। अब आप लाइन पे चलो, 0 π/2 π 3π/2, जो हमारा फंक्शन था x बिलोंग्स टू 0 1, ये 3x में क्या किया, x 0 to π/2 3x, 0 to 3x greater than 0 लेस देन 3π/2। यहाँ पे एक जो है 0 π/2 π 3π/2 आप देखो साइन x फर्स्ट केस क्या है, 0 to π/0 to π, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पास टू, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पास टू। तो फर्स्ट इंटरवल क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3x, 3x ग्रेटर देन 0 लेस देन π। 3x ग्रेटर देन 0, 3 से 270 डिग्री तक नीचे करना है। तो फर्स्ट यू टेक अ इंटरवल 0 to π, 0 to π मींस 3x ग्रेटर देन 0 लेस देन π। आप जानते हो कि बोथ क्वाड्रेंट sin 3x ग्रेटर देन 0, बट हियर -3 इज चेंज नेगेटिव, f'(x) लेस देन। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट sin पास टू, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन लिखा, बट y dash f'(x) -3 change is negative, so this quadrant is strictly decreasing। second step, π to 3π/2, 3x दो पार्ट में डिवाइड हुआ, π to 3π/2। थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, π से 3π/2 में साइन क्या है, नेगेटिव। इट मींस sin 3x लेस देन 0, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, आप माइंड से सोच लो कि थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, इसलिए 0 है, माइनस इंटू माइनस f'(x) -3, फिर -2 वैल्यू आएगी, दैट इज प्लस। इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, या यहाँ पे एक वैल्यू छूट रही है, तो मैंने होल प्रोसेस के कारण बताया। हमें ऑप्शन क्या है, 0 से π तक। ऑप्शन क्या है, 0 से π तक। अब देखो 3x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, sin 3x ग्रेटर देन, ओके राइट है। आप यहाँ से लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/6। इसको मुझे 3x को जो है
0 to pi by 6 में कन्वर्ट करना है। 0 pi by 6, क्योंकि आना उसको pi by 2 किया जाएगा। 0 से pi by 6 वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? x is greater than pi by 3 less than pi by 3 से less than 3 pi 3 से डिवाइड हो जाएगा pi। इसके बीच में वैल्यू नेगेटिव देगी, वो नेगेटिव वैल्यू इधर पॉजिटिव प्लस इसमें नेगेटिव आएगा, वैल्यू को नेगेटिव देगी ये, f(x) मतलब ये पॉजिटिव देगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये नेगेटिव देगा, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, y equal to cos 3x, neither increasing nor decreasing। एक ही फंक्शन जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। लास्ट क्या है? y equal to tan x, y dash sec square x, where x belongs to 0 to pi, sec is 0 to pi by 2, sec first quadrant positive, f dash x greater than 0, strictly increasing। Only two answer will be right. First is a and b are function strictly decreasing। Question number 14, 13 is most important। Most important। On which following intervals function f(x) x power 100 plus sin x minus strictly decrease करता है? Which quadrant? First 0 1, second pi by 2 pi, third 0 to pi by 2। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें चेक करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फर्स्ट ए 0 to 1, बी pi by 2 to pi, सी 0 to pi, 0 to pi। स्ट्रिक्टली डिक्रीज, फाइंड आउट कब होगा? जब इसको हम चेक करेंगे। f dash x 100 x पावर 99 प्लस cos x। You know that cos x range -1 to cos x की वैल्यू कभी भी -1 ना मोर लेस देन ना 1 मोर देन। You know that। फर्स्ट ऑप्शन A, x belongs to 0 to 1। इसके बीच में x की आप एक वैल्यू ले लो 0.5। यहाँ पे कौन सी वैल्यू 0.5 देती है? पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। पाई बाई 3 बटा होती है 60 पाई बाई। यह डैश, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू देखना पड़ेगा, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है 0 to 1 के बीच में, कि ये भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 100 0.5 पावर 99, दिस इज पाई बाई 3। पाई बाई 3 वैल्यू इनवर्स से मैंने लिया 22/7 ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी कैलकुलेशन नहीं करना है, दोनों पॉजिटिव आ गए, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। इट मींस x बिलोंग्स टू 0 to 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीज करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीज।
बी ऑप्शन। x बिलोंग्स टू पाई वैल्यू बेटा, पाई वैल्यू निकालनी पड़ेगी 22/7, पाई बाय 2 इज 22/7, हाँ 11/7 एंड 22/7। आप इसको सॉल्व करोगे, 7 1 जा 7, नाउ 4 7 5 जा 35 मिलेगा 1.22/5। सेवन 2 जा 14, 7 3 जा 3 पॉइंट समथिंग। ये ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू जो है हर समय 1 से 1 से बड़ी होगी, क्योंकि 1.5 3 अब आप यस में चेक करो 100, कोई भी वैल्यू इसके बीच में डाल, ये तो नहीं ले सकते, 1.7 ले सकते हैं हम, 1.75 है उसके बीच में 99 प्लस cos x वैल्यू हम 1.7 इसको इक्वल से निकालेंगे, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स टू 11/7, 22/7 is greater than 0. Yes, that is not is strictly increasing. Third option C, x belongs to 0 to pi, means x belongs to 0 and 22/7, x belongs to 0 3.14, ये भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑप्शन 4 नो नॉट दीज, कोई भी इंटरवल इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा। इन ABC में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ओके, इस तरह आप चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करने का वर्क ज्यादा है, वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, रिजल्ट फाइनल नहीं निकालना है कि इतना ही आएगा। देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f(x) x² plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2। इसके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है 1 से 2 के बीच। कंफर्म हो गया कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 to 2। फाइंड द वैल्यू a, नो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a की अगर 2-3 वैल्यू आती है उसमें सबसे छोटा कौन है वो कंसीडर करना है। लीस्ट बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देना, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर 2 वैल्यू आ गई आप कुछ भी दे रहे होंगे कि वैल्यू मान 10 आई, की वैल्यू 5 आई, कहीं आपने 10 ले लिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है लीस्ट, मैथ में 1 इसलिए क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली ढंग से पढ़ना चाहिए। एक वर्ड पर प्रेशर होता है, लीस्ट पे प्रेशर है, वही वैल्यू है जो सबसे छोटी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash s 2x plus a, you know that where x is strictly increasing, किसके बीच में x है 1 and 2 by given question। कहाँ से पता चला मुझको? given question, ये मुझे क्वेश्चन ने बताया कि इसके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। यह ब्रैकेट्स का रेंज कितना है, वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 2 देन 2x लेस देन 4, 2x प्लस में लाना है 2 ऐड कर दो लेस देन 4 प्लस a, जो 2x प्लस a की जो रिजल्ट आएगा
मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कौन होगा 2 प्लस e, मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका कितना आएगा 4 प्लस e। बात समझ में आ रही है? और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इट मींस f डैश x ग्रेटर देन 0। तो f डैश x का पहला वैल्यू है 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन माइनस। सेकेंड क्या है 4 प्लस a ग्रेटर देन 0, क्योंकि f डैश x की वैल्यू ये आई 4 प्लस a, तो a ग्रेटर देन माइनस। मैंने बोला था दो वैल्यू -2 एंड -4। तो लिस्ट में कौन आएगा देखो -4 -2, यहां से भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी वैल्यू है, तो लिस्ट में आएगा कौन -2। Here a equal to -2 is the least value for increasing function this। फिर भी ये बहुत आसान है, कह रहा है कि ऑलवेज फिर आई का इंटरवल, जो आई इंटरवल है क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, टेक्स्ट बुक आपके पास होगा तो आप अच्छे से समझ जाएगा, टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो आधे तो तुमको उड़ जाएंगे। लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट, अगर तुम डिसजॉइंट को कंफर्म नहीं किए फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 डिसजॉइंट, यहां पे डिसजॉइंट है, प्रूव दैट यह फंक्शन गिवन बाय फंक्शन f(x) x plus 1 by x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चंस का मीनिंग ये है कि डिसजॉइंट -1 और 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करेगा, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीज है -1 लेस देन माइनस इनफाइनाइट, -1 लेस देन प्लस इनफाइनाइट। फिर से समझ लो, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन डिसजॉइंट इंटरवल -1। मतलब इसी तरह से आपको -1 to 1 को डिक्रीज कर देना है, -1 से इनफाइनाइट स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इधर स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इसके बीच में ये ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा। तो यह फ्लैशेस ये भी रूल्स हमारे पास है, 1 - 1 by x square, x डेरिवेटिव 1 by x -1 by x square, x square minus x square, here x plus 1 and x minus 1 upon x square। तो x is a domain, x minus 1 ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए इसके बीच में, क्योंकि f डैश x सो दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, f डैश x ग्रेटर देन 0, तो x minus 1 ग्रेटर देन 0 where x greater than 1 and x plus 1 greater than 0, x greater than minus less than। अब आपको क्या करना है, सब वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए इसमें। फर्स्ट कंडीशन इंटरवल मैंने क्या किया, -∞ to -1, आप कोई भी एक वैल्यू डालो, -2 कर दो, -2 plus 1, -2 minus 1, -2 whole square, that is -1 minus 3 4 3 by 2 ग्रेटर देन, इसके बीच में स्ट्रिक्टली। सेकेंड ऑप्शन f डैश 2 ले लो, तो 2 plus 1
2 minus 1 by 4, same value 3 by 4 greater than 0 strictly. Only minus 1 and 1 maybe are not increasing. This is the आपने जो minus 1 to 1 this joint are strictly increasing. Question number 16, 17 and simple questions. One more line questions. F equal to log sin x. F dash x equal to 1 upon sin x cos x. Now cot x belongs to 0 to pi by 2. F dash x greater than 0. Cot first quadrant positive. Such that आप लिख दो such that f x is strictly increasing on interval 0 to pi. Same question 17. F x equal to log cos x strictly decreasing. Y equal to log cos x f dash x 1 upon cos x minus sin x minus tan x. Tan x now first quadrant x belongs to 0 to pi by 2 positive means f dash x less than negative. Tan x को positive ले जाने के लिए negative होगा इसकी decrease. 16, 17 easy question. Question number 18. ये तो आप करके जाओगे. f x दिया है तो फाइंड आउट करना है. x क्यूब minus 3x square plus 3x minus 100. अनइंक्रीजिंग आपका प्रूफ करना है कि रियल नंबर के किसी पॉइंट पर ये इंक्रीज ही करेगा, ये कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता. डेरिवेटिव f dash x 3x square minus 6x plus 3. Now common 3 common x square minus 2x plus 1. Now 3 common लिया था x minus 1 whole square. For any value of x, for any value of कोई भी any real value, any real value for x, then x minus 1 whole square is positive. और कहीं ऐसा है नहीं, आप नेगेटिव रखोगे तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव करेगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, -2 रखेंगे तो -2 -1 -3 9, कभी ये नेगेटिव नहीं देगा. देन प्रूफ f x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is strictly increasing for x belongs to R. Okay. Question number 19, MCQ question. Y equal to x square power minus x is increasing interval. Whole interval will be given. Then f dash x square divided x to power minus x minus p power minus x p power minus x square divided 2x. First, where x common, p power minus x common, so minus x plus 2 means x p power minus x 2 minus x. Yes,
2 minus x upon p power s. Here positive value given x equal to 0 and x equal to 2. जो इसका रेंज आएगा 0, दो वैल्यू आएगी 0 एंड 2, तो हमें जो है 0 से 2 का इंटरवल ही हमको मिलेगा, फिर वैल्यू पॉजिटिव f एलसीएस। ऑप्शन डी राइट हो 0 to 2। चेक कर लिया, आगे साफ करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, 0 to 2 मिल गया। इसके बीच में फंक्शन क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज आएगा, अदरवाइज डिक्रीज। Okay, this exercise is complete.